हेलो। Good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। अभी कहाँ रह गए बस? हेलो। आ रहे हैं सर। सर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। आ रहे हैं सर। स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ये एक्चुअल में मेरा जो है लैपटॉप में कुछ चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू ओपन माय स्लाइड्स। ठीक है, बट लेट मी डिस्कस समथिंग। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? सर फ्रैक्चर मैकेनिक्स का हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। सो वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स। यस सर। ठीक है। सो इसमें मेनली जो है, जो हमने डिस्कस किया था कि हाउ द फ्रैक्चर मैकेनिक्स केम इनटू पिक्चर, है ना? सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि देयर वर सम मेजर failures that happened in the history. Okay, so that actually resulted in engineers to rethink their design procedure. Okay, जैसे पहले हमने बात किया कि पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उससे पहले पीपल वर यूजिंग टिम्बर, ब्रिक एंड ऑल,
है ना, और वो ब्रिटल मटेरियल थे, और ब्रिटल मतलब दे कैन टेक जस्ट कंप्रेसिव लोड, और इस तरह से हम डिजाइन करते थे कि जो स्ट्रक्चर है वो कंप्रेशन में ही रहे ज्यादातर, है ना। सो the structures, if they are compressively loaded, so then they are more stable as compared to a matlab, a structure which is loaded in tension. But later on, when industrial revolution happened, and there was mass production of iron and steel, and because of that, the structures were made not only to carry compressive load, they were able to take tensile load also. बट वैसे जैसे अगर अगर देखें, अगर हम क्रैक की बात करें, अगर मान लीजिए कोई प्लेट है आपके पास और उसमें क्रैक है कोई इस तरह से, तो सबको पता है कि अगर टेंसाइल लोड लगता है तभी ये जो है ओपन होने की कोशिश करता है, राइट। और अगर कंप्रेसिव है तो इट विल ट्राई टू क्लोज दिस क्रैक। तो यही बेसिक आइडिया है कि कंप्रेशन में जो है स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, बिकॉज दैट एक्चुअली नॉट allow the crack propagation, instead it will try to close it। तो यही बेसिक आइडिया था। बट जैसे जैसे टेंसाइल लोडिंग लगा तो उसकी वजह से कई तरह के फेलियर्स जो हैं हुए, दैट हैपन। लाइक मैंने बात किया मोलेसिस जो टैंक जो फेलियर हुआ था, है ना, बोस्टन में। सो दैट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्रैक ओनली, ओके। और दूसरा फिर उसके बाद देयर वर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट हैपेंड, और सबसे बड़ा उसमें जो था वो था लिबर्टी शिप, फेलियर ऑफ लिबर्टी शिप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, है ना। सो द रीजन वाज दैट instead of riveted joints they made use of welded joints to make a whole ship, and so that actually resulted in failure, okay. Not only that, the region were also there, like they were used in cold water, so because of that also brittleness increased, okay. And also the content of sulfur was also increased in their material, okay. So that also resulted in brittleness. So all these combined together were the regions to cause failure of liberty ships. But after that people started investigating ki what was the reason, so they could find out, and then only फ्रैक्चर मैकेनिक्स फील्ड केम इनटू पिक्चर, ओके। तो ये हमने जो है बात किया। उसके अलावा फिर उसके बाद काफी लोगों ने इसमें फील्ड में काम किया, जैसे इरविन था, इंग्लिश, ग्रिफिथ, ओके। तो दे they research in the area and they come out with some parameters, okay, fracture characterizing parameters, that is what we call, okay. So they like, for example, stress intensity factor is there, energy release is there, right. Similarly J integrals is there, crack opening displacement is there. So that way they come out with these parameters. So there are different fracture mechanics approaches. In that, the basic is linear elastic fracture mechanics, okay, linear elastic fracture mechanics. So that actually considered almost no plastic zone near to the crack tip, right. So but later on when it was found that plastic deformation is significant in some cases, so then they applied theory of linear elastic plastic elastoplastic fracture mechanics, right. So that way there were different parameters that were defined. So all these will be talking about. But nowadays remember that not only LEFM we talk about elastoplastic fracture mechanics, we talk about linear elastic fracture mechanics, means when the linear time independent material is considered,
Okay, LEFM. LEFM. So it's mean that linear time independent material. And then EPFM, elastoplastic fracture mechanics. It's mean that no linear time dependent. This is time dependent but linear. This is linear but time independent. Time independent. Okay, but when we talk about EPFM, then it is non-linear time independent. In both cases time dependency is there, but later on, when the research was advanced, so then the fracture mechanics theory was improved to talk about dynamic fracture mechanics, and elastoplastic, viscoelastic fracture mechanics, and then viscoplastic fracture mechanics. Okay, so these are all time dependent phenomena. तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से जो एडवांसमेंट हुआ है फ्रैक्चर मैकेनिक्स फील्ड में. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है कि देयर वर, हाँ, यस, Yes, sir. Continue. डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो मोड ऑफ फेलियर्स के बारे में यू आर वेरी मच फैमिलियर. मोड ऑफ फेलियर्स क्या क्या हो सकते हैं? मोड ऑफ फेलियर्स, व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर ऑफ ए स्ट्रक्चर? बताइए. पढ़ा होगा आपने, मे बी इलास्टिसिटी में ही पढ़ा होना चाहिए. व्हाट आर द मोड ऑफ फेलियर्स? यस, एक दो तो नाम बताइए. सर फटीग फेलियर. फटीग है, चलो ठीक है. फटीग एक्चुअल में क्या है कि फटीग जो है लोडिंग है, राइट. मोड ऑफ फेलियर क्या होगा? बट फटीग फटीग फ्रैक्चर सर. Brittle fracture. फ्रैक्चर होगा. ठीक है ना, फ्रैक्चर एक जो है आप पढ़ेंगे जो हम फ्रैक्चर मोड ऑफ फेलियर है. और क्या पढ़ा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? कब कहेंगे कि फेल हो गया? Corrosion. कोरेजिन के. ओके. डक्टाइल फेलियर फ्रैक्चर. डक्टाइल जिसको बोलते हैं यील्डिंग, हम बोलते हैं यील्डिंग फ्रैक्चर. Distortion. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ग्रॉस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना. थर्ड, और क्या Distortion. पढ़ा है? Distortion. नहीं, वो सब इसी में आएगा ना. डिस्टोर्शन जो है, यील्डिंग डिस्टोर्शन विल कॉज द यील्डिंग. इसके अलावा जो है, अगर मान लीजिए प्लास्टिक रेंज में भी, इलास्टिक रेंज में ही है हम, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इवन इन मैनी एप्लीकेशन वी डोंट वांट दैट इलास्टिक डिफॉर्मेशन टू बी लार्ज. वी डोंट वांट दैट. तो कई बार क्या होता है कि लार्ज इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैन आल्सो रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द कंपोनेंट. लार्ज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे मान लो बेरिंग है, बेरिंग में हम चाहेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो, तो अगर होता है तो क्या होगा? जैम हो जाएगा वो, बिकॉज ऑफ सम डिफॉर्मेशन. ठीक है. आल्सो यू माइट टॉक अबाउट इलास्टिक इंस्टेबिलिटी. व्हाट इज इलास्टिक इंस्टेबिलिटी? सर प्लास्टिक इनस्टेबिलिटी तो पता है सर. यील्ड स्ट्रेस के बाद में जो लोडिंग कंटिन्यू रखते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है मटेरियल. इलास्टिक इंस्टेबिलिटी क्या है? पढ़ा हुआ आपने भी, जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेस.
बकलिंग। इलास्टिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इलास्टिक लिमिट में ही रहते हैं हम उसमें, बट मटेरियल प्लास्टिक रेंज में नहीं जाता है, बट उससे पहले ही क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। जैसे मान लो कोलम की बात आपने सुना होगा, राइट? अगर मैं इसके ऊपर कंप्रेशन लगाता हूं तो, और इसकी लेंथ काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, यानी कि इसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है बहुत हाई है, ठीक है, तब क्या होगा कि ये जो है कंप्रेशन की वजह से फेल ना होके, मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से मे बी बिकॉज ऑफ कंप्रेशन देयर में बी यील्डिंग स्ट्रेसेस की वजह से, राइट? बट उससे पहले क्या होगा, ये जो है एक स्टेज आएगी, इस तरह से ये जो है बेंड हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फेलियर। सो दिस इज कॉल्ड इन स्टैटिक इलास्टिक इंस्टेबिलिटी। और उसके बजाय टेंसाइल इंस्टेबिलिटी भी होती है, जिसमें कि नेकिंग वगैरह हो जाती है। टेंसाइल इंस्टेबिलिटी, इसमें बेसिकली नेकिंग है। नेकिंग की बात जो है, आपको पता है कि मटेरियल जो है, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। नाउ इट इज नॉट एबल टू कैरी लोड। तो ये अलग अलग तरह के मोड ऑफ फेलियर्स हैं जो जो आपको पता होगा। फ्रैक्चर जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे एग्जांपल मैंने लिया, अब जब हम बात करते हैं कोलम की, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलम, कोलम में जो फेलियर है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ रीच हो गई है, स्ट्रेंथ बेस्ड फेलियर नहीं है वो, राइट और नॉट? स्ट्रेंथ बेस्ड फेलियर का मतलब है कि जैसे स्ट्रेसेस इसमें इंड्यूस हुए, वो स्ट्रेसेस स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गए, देन वी विल से इट इज फेल्ड। सो बकलिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ फेलियर एक्चुअली, राइट? Yes, sir. इट इज ए, यस, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेंथ काइंड ऑफ फेलियर, स्ट्रेंथ की वजह से नहीं फेल होता है, ये और तरह का ही है। जैसे आपने अगर देखा होगा, ऑयलर बकलिंग लोड जो है आपने कैलकुलेट किया था, ऑयलर बकलिंग लोड इसमें क्या है कि मतलब जैसे जैसे मतलब अगर शॉर्ट सिलेंडर शॉर्ट कॉलम है तब बकलिंग नहीं होगा, अगर लॉन्ग कॉलम है तब बकलिंग होगा, राइट? तो इनिशियली क्या होगा कि सिलेंडरनेस रेशियो के अगर रिस्पेक्ट में अगर प्लॉट करें हम सिलेंडरनेस रेशियो, राइट, SR सिलेंडरनेस रेशियो, तो अगर शॉर्ट कॉलम है तब फेलियर इज डिफाइंड बाय द स्ट्रेस स्ट्रेंथ बेस्ड, और जैसे ही आपका जो है कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ता है देन ऑयलर बकलिंग जो है दैट विल डिफाइन द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। सो दैट इज नॉट ए मटेरियल फेलियर एक्चुअली, it is a it is a it is a structure failure because of the instability, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं बकलिंग का कॉलम का, इसी तरह से अगर कोई जनरल लोडिंग की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट जनरल लोडिंग, दो तरह से हो सकता है, एक तो होता है स्ट्रेंथ बेस्ड, ठीक है, और एक दूसरा होता है फ्रैक्चर बेस्ड। तो फ्रैक्चर बेस्ड में क्या है कि this is the first thing that we consider that cracks and voids are present in the material, clear? So वहां से फेलियर स्टार्ट होता है। तो जो फ्रैक्चर मैकेनिक्स बेस्ड थ्योरी है टू प्रिडिक्ट फेलियर, सो दे आर डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम द स्ट्रेंथ बेस्ड थ्योरी। जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे स्ट्रेस अगर ज्यादा हो जाते हैं हमारे फील्ड स्ट्रेंथ से, so then we will say that material is failed, right? Yes, sir. बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स जो है वो थ्योरी अलग है, ठीक है। और आप देखेंगे बाद में कि जब हम इसको डिजाइन करते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा नहीं है कि जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल विल ऑलवेज गोइंग टू प्रोवाइड द सेफ डिजाइन फ्रॉम फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू।
Okay, it is not always. In some instances, when we talk about designing a component from fracture mechanics point of view, then high strength material are not recommended. We don't want material to be high strength material, right? तो ये चीज हम देखेंगे बाद में, ठीक है? तो ये चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स में जो है अलग है। जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैंटिलीवर बीम ले लेता हूं ऐसे, तो आपको पता है अगर मैं लोड लगाऊं तो यहाँ के आसपास जो है बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है, और बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है तो मैं यहाँ पे सिग्मा मैक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है? सिग्मा मैक्स मैं निकाल लूं अगर यहाँ पे, राइट, आई कैन डिटरमाइन, let us say h is the this cross section dimension, l is the length and all, okay? तो मुझे पता है कि sigma max if less than equal to sigma y, and sigma max I can determine, actually I can determine because p into l will be the moment, and moment, you know this relation, you know sigma max was m upon I into sigma this y max, ये पता होगा आपको, है ना? तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख सकते हैं, y max रख सकते हैं, सिग्मा मैक्स निकल जाएगा। इफ सिग्मा मैक्स इज लेस देन सिग्मा y, सो मैं यहां से p मैक्स निकाल सकता हूं। लोड क्या लगाऊं, ठीक है? इट इज फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये निकाल सकता हूं मैं। बट अगर इसी को मैं अगर फ्रैक्चर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इसी को, तो आपको पता है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा कि देयर वुड बी क्रैक हियर, जो कि हम मान के चलते हैं कि क्रैक प्रेजेंट है, तो हमें कुछ मॉडल करने के लिए वी विल हैव टू अज्यूम। और इस केस में क्या होगा, नॉट ओनली द लोड, इसमें तो क्या है कि टोटली जो है मटेरियल जो प्रॉपर्टी है दैट इज गोइंग टू डिफाइन द फेलियर, मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट साइज डिपेंडेंट, ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन में जो है कहीं पे भी साइज नहीं आएगा, साइज ऑफ द some discontinuity in the structure, right? But on the other hand, when I talk about fracture mechanics, तो वहां पे अलग है थ्योरी, KI less than equal to KIC, इसको बोलते हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, ओके? एंड ये है क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर टफनेस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फ्रैक्चर टफनेस, राइट? तो ये अगर इससे कम है देन ओनली इट विल बी सेफ। और ये जो KI है, KI इसको जो है ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेस एज वेल एज इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्रैक्स, जो भी क्रैक है उसका साइज क्या है, क्रैक साइज, ठीक है? और स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के अलावा इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है ये कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स थ्योरी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, we can't just make use of the strength based theory to predict failure. We will have to talk about fracture mechanics based theory also, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो है हम दोनों थ्योरी से ही चेक करके देखते हैं कि दोनों में ही जो है वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. सर यस। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा, ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर? Yes. Sir, in brittle fracture, sir, after yield stress, material will be fail. हाँ, दोबारा बोलो।
After yield stress limit, material will be fail in brittle structure. नहीं, ब्रिटल में तो यील्डिंग होता ही नहीं है बेसिकली, है ना, ऑल ऑफ सडन फेल हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है ना। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करते हैं तो इस तरह से फेल हो जाएगा। ब्रिटल फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कि व्हेन ए मटेरियल इज फ्रैक्चर्ड विदाउट मच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। Yes, sir, क्या? without plastic deformation. Yes. विदाउट मच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम ब्रिटल फ्रैक्चर। डक्टाइल फ्रैक्चर का मतलब ये है कि बिफोर इट फ्रैक्चर क्या होगा कि आपका जो है मटेरियल विल बी सब्जेक्टेड टू द लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो उसका अगर स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करें तो इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। तो लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर Yes, sir. है ना। तो इसको ब्रिटल और डक्टाइल बोलते हैं। बट ये ध्यान रखना कि अंडर सर्टेन कंडीशन कई बार क्या होता है कि डक्टाइल फ्रैक्चर जो मटेरियल है, इसका मटेरियल से लेना देना नहीं है कि मटेरियल हमारा डक्टाइल है तो डक्टाइल फ्रैक्चर होगा, या मटेरियल हमारा ब्रिटल है तो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। नो, आपको पता होगा कि जो अगर हम मान लो फटीग लोडिंग की बात करें और क्रैक वगैरह है उसके अंदर, तो कई बार क्या होता है कि जो 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 डक्टाइल मटेरियल्स हैं दे आल्सो फेल जस्ट लाइक ब्रिटल मटेरियल, जस्ट लाइक ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि ब्रिटल फ्रैक्चर और डक्टाइल फ्रैक्चर का क्या है। मतलब यू जस्ट बाय लुकिंग एट द सरफेस आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई किस तरह का फेलियर है, किस तरह का नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है थिक प्लेट की, अगर बात करें, अगर थिक प्लेट है आपके पास, अगर मान लीजिए बहुत मोटी प्लेट है इस तरह से, है ना, और इसके अंदर कहीं बीच में क्रैक है कहीं पे, तो मतलब यू कैन जस्ट लुक एट कि देखिए फ्रैक्चर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा ये ध्यान रखिए दिमाग के अंदर कि भाई फ्रैक्चर के लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करता हूं जिसमें कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है फ्रैक्चर के लिए, जैसे जैसे एनर्जी जो सारी की सारी जो है जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा किसी तरह से भी लोडिंग के थ्रू, वो क्या करेगा, सारा का सारा जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी फ्रैक्चर को प्रोपेगेट करने में, क्रैक को प्रोपेगेट करने में। बट ऑन द अदर एंड अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो वहां पे क्या होगा कि वो जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो क्या होगा कि वो एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाएगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है फ्रैक्चर जो है मतलब एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं होगा उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि डक्टाइल बिहेवियर दिखाए मटेरियल, डक्टिलिटी हो, ठीक है, तो सो दैट वी कैन कंज्यूम द एनर्जी। तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर है दैट वुड बी लेस, और उससे क्या होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा हमारा। तो अगर हम थिक प्लेट की बात करें, थिक प्लेट ऑफ रेगुलर डक्टाइल मटेरियल, तो वो क्या करेगी, वो जो है जो ग्रोथ है फिर क्रैक वो ब्रिटल मैनर में होगी, क्योंकि क्या होगा कि मतलब जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो मतलब कंस्टेंट हो जाएंगी चारों तरफ से। अगर मान लीजिए कोई क्रैक इन द डीप इनसाइड द थिक प्लेट है तो वो जो है ऑल साइड से कंस्टेंट हो जाएंगी और लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन द विसिनिटी ऑफ द क्रैक टिप, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फेलियर है वो ब्रिटल मैनर में होगा, ब्रिटल मैनर की तरफ होगा। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे लास्ट में कि हमारा जो थिन प्लेट आर रिक्वायर्ड, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू क्रैक ग्रोथ, बट थिक प्लेट जो है दे आर लेस रेजिस्टेंट टू क्रैक ग्रोथ। ये बाद में भी आप देखोगे इसको जो है ना। तो अगर थिक प्लेट है तो उसमें जो क्रैक प्रोपेगेशन होगा दैट वुड बी ब्रिटल मैनर की तरह होगा, बट डक्टाइल जो थिन प्लेट है उसमें वो आपका डक्टाइल मैनर की तरह होगा, डक्टाइल फ्रैक्चर होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि भी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी को अगर हम कंज्यूम कर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो इम्पैक्ट लोडिंग भी है उसमें भी आपको पता होगा कि हम जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल, वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म होने के बाद
जो है वो जो एनर्जी थी कंज्यूम कर देते हैं हम उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, उसकी वजह से जो जो एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑक्यूपेंट है ऑटोमोबाइल में ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, वो कम होगा। उसकी वजह से क्या है कि वो सेफ होंगी ऑक्यूपेंट्स, पैसेंजर्स। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि भी हाँ एनर्जी जो सप्लाई हुई है वो कंज्यूम हो जाए, मे बी इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन एनी अदर वे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दिमाग में। अगर मोड ऑफ फ्रैक्चर फेलियर की बात करें तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये सब। ओपनिंग मोड है, मोड 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस। यस, 3 modes of fractures are there. Modes of fracture, 3 modes of fracture। ठीक है, मोड 1, मोड 2, मोड 3। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना भाई? Yes, sir. हाँ, मोड 1 का मतलब इसको बोलते हैं ओपनिंग मोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग मोड। ठीक है, ओपनिंग मोड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये क्रैक इस तरह से है, राइट? इस तरह से लोड लगाया आपने, इस तरह से। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड दिस ओपनिंग मोड। ओके, मोड 1 जिसको बोलते हैं, जो कि ज्यादातर स्टडी यही होता है। ठीक है ना, और आगे ये जो इसके आगे जो रहेगा, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्रैक फ्रंट। क्रैक फ्रंट, राइट? दिस इज ओपनिंग मोड। सिमिलरली मोड 2 क्या है? दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग मोड। स्लाइडिंग मोड, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए दिस इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से जो है इस तरह से, मतलब यहाँ पे लोड लग रहा है, इसके अपोजिट ये लग रहा है पी, ये भी पी है। स्लाइडिंग मोड बोलते हैं इसको। अगेन दिस इज ए क्रैक फ्रंट। क्रैक फ्रंट, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग मोड, राइट? ठीक है, तो इस तरह Yes, से sir. मतलब ये स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करेगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना? ये इधर खींचेंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा, राइट? Yes, sir. राइट, सो दिस इज मोड 2। मोड 3 जो है सेम इसी तरह से है, बट आउट ऑफ प्लेन रहेगा। ये इन प्लेन बोलते हैं इसको, इन प्लेन मोड बोलते हैं, इन प्लेट शियर मोड। और अगर मान लीजिए लोड मैं अगर ऐसे लगाता हूँ इसमें, ऐसे, और इसको इधर की तरफ, जैसे कैंची देखा है ना आपने, कैंची काटता है इधर से, इस तरह से, राइट? आउट ऑफ प्लेन, मोड 3, इसको बोलते हैं टियरिंग मोड। टियरिंग मोड, राइट? इनमें जो सबसे ज्यादा है वो मोड 1 है। मोड 1 है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, है ना? एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस मोड, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंट मोड ऑफ फ्रैक्चर हैं। मोस्ट स्टडीड, मोर डोमिनेंट एंड मोस्ट डेंजरस मोड ऑफ फेलियर इज मोड 1। ठीक है, इसके अलावा मिक्स्ड मोड भी आता है। मिक्स्ड मोड, ये ध्यान रखना आगे। मिक्स्ड मोड, मिक्स्ड मोड में क्या है कि मोर देन वन मोड जो है एक्टिव रहेंगे इसमें,
राइट। सो दैट वे यू शुड नो कि क्या है ये मोड 1 2 3, है ना। और ये ध्यान रखो कि हमारा जो है, हम बेसिकली जो है क्रैक के नियर एंड अराउंड ही जो है कंसंट्रेट करते हैं फ्रैक्चर मैकेनिक्स में। वी डोंट टॉक अबाउट मटेरियल अवे फ्रॉम द क्रैक। इज इट क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, उसका बैकग्राउंड जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, उसका बैकग्राउंड जरूरी है। दैट इज द प्री रिक्विजिट कोर्स दैट यू शुड नो, राइट। अब जब बोलते हैं मतलब जो जो मतलब थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसमें आप लोगों को पता है कि स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके। और उसके अलावा इंडिशियल नोटेशन भी हमने यूज की थी, तो वो भी जो है नॉलेज जो है चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन है, स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, राइट और नॉट, ये सब आप करें हैं, तो वो सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसको, ये ध्यान रखना, राइट। उसके नॉलेज के बगैर जो है थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आप लोग कर चुके हैं तो इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जहां कहीं भी रिक्वायर्ड होगा तो देन आई एम गोइंग टू टॉक दैट पार्ट, ठीक है। ओके सर। एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर सर। ओके। आज का मतलब आपका लैब का हमने प्लान किया हुआ है फ्रॉम 3 तो मिस्टर अरविंद में यू में बी नोइंग जो है वो आपकी कंडक्ट करेंगे लैब अबेकस के ऊपर। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का अबेकस इंस्टॉल हुआ है सिस्टम के ऊपर। लास्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को बोला कि आप करिए, इंडिपेंडेंटली करिए, है ना। वी ट्राइड इट टू इन द लैब आल्सो बट वी कुड नॉट डू इट। बट अब तो आपका ये करिकुलम का पार्ट है, सो यू आर बाउंड टू डू इट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में हम डिवाइड करके रखते हैं इसको। एक सॉलिड मॉडलिंग वाला पार्ट करते हैं, दूसरा एनालिसिस वाला करते हैं। सॉलिड मॉडलिंग के लिए आप लोगों ने आई डोंट नो वेदर यू वर्कड और नॉट, इन्वेंटर वगैरह पे काम किया है क्या, ऑटोडेस्क इन्वेंटर? यस, नहीं किया है तो ठीक है, जब आप आओगे तो उस टाइम पे हम ये जो है कराएंगे आपको। बट अबिकस वाला पार्ट जो है यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो मुझे ये बताइए कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है? यस। कितने लोगों ने किया हुआ है, मैं आई नो? ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया सर। हैंड कर लिया है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं इसको, हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आज जो है 3 बजे का हम रखेंगे, 3 से 5। ओके। तो मैं आपकी जो है लैब क्रिएट कर देता हूं इसमें, आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड मिस्टर अरविंद वुड बी कंडक्टिंग बेकस पे करेगा। ठीक है।
ओके सर। ओके सर। और मैंने जैसे बताया ना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, कंपोजिट के ऊपर भी जैसे हमने कुछ एग्जांपल प्लान किए हुए हैं, जो कि मैं चाह रहा था कि आप अगर कर लेते, अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कर लेते उसके ऊपर, तो हम कंपोजिट के ऊपर भी कराते आपको, बट अब कराएंगे उसको, इसी में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसके लिए जो है यू स्टार्ट लर्निंग, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। कोई डाउट है, कोई इस तरह का है, वो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और फाइनाइट एलिमेंट कोर्स है आपका, राइट, अभी चल रहा है अभी, है ना? यस सर। हाँ, तो वो कोर्स भी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है कैड सी के लिए, तो दैट विल ऑल टुगेदर विल गिव यू वेरी गुड लर्निंग। ठीक है, तो अच्छे से करो इसको आप लोग, राइट। तो लेट मी स्टॉप हियर, सो विल कंटिन्यू विद दिस। सर अपना एग्जाम जो होगा ओपन बुक होगा या क्लोज बुक होगा? ओपन बुक रखेंगे इसको, ठीक है। एंड सर टाइम टेबल कब तक आ जाएगा? टाइम टेबल तो नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा। सर पूरा एग्जाम ओपन बुक होगा कि पार्ट एग्जाम? नहीं, पूरा ओपन बुक रखेंगे उसको, ठीक है। सर ओपन बुक में मतलब नोट्स और असाइनमेंट सब कुछ ला सकते हैं? ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है सर। क्लास नोट्स एंड टेक्स्ट बुक। मतलब सर जो ठीक है। आपने वो जो पीपीटी बनाई थी सर, वो मतलब जो हमारे पास पीपीटी पड़ी हुई है। हाँ, ला सकते हो वो भी, सर थैंक यू। ठीक है। और एक असाइनमेंट मैंने भेजा था लास्ट में, आपको ध्यान होगा, है ना? यस सर। वो आप करके वो भी सबमिट कर दो फटाफट, है ना? और ऐसा मैंने लास्ट वाला चैप्टर जो है उसमें मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिए हैं आपको असाइनमेंट एज असाइनमेंट, बट ट्राई यूर सेल्फ, है ना? सो ऑब्वियसली जो है उसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके देन, 3 बजे फिर जो है आप लोग मिलिए, 3 बजे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन, है? ओके सर। ओके, थैंक यू।